gases. This is very easy chapter. Breathing में अभी सिर्फ हमने chapter में topic start किया था, that is the human respiratory system. Human respiratory system में it starts with the nose or nostrils. Almost सभी ने ये class लगाई थी एक्सेप्ट रिया, तो सभी को याद होगा हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज. नोज में नॉस्ट्रल्स आते हैं, नॉस्ट्रल्स में नेजल चैम्बर. दिस नेजल चैम्बर हैज नेजल हेयर, और नेजल हेयर जो है दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग और ट्रैपिंग द बैक्टीरियाज और द जर्म्स और द इंसेक्ट्स विच आर कमिंग इनटू आवर नोज. दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग जो हमारे डायरेक्टली बॉडी में के डायरेक्ट कंटैक्ट में है. तो दैट इज व्हाई इट हैज नेजल चैम्बर. It has nasal chamber. It has olfactory glands. Olfactory glands helps in detection of the smell. Or you won't believe these olfactory glands helps in the taste also. There are many tastes which हमें लगता है कि वो taste से पता चला है, but it is the smell which we detect first. तो olfactory they are very strong, and in case of dogs it is very strong. पता है आप लोगों को olfactory lobes पूछा जाता है कौन सा ऐसा पार्ट है डॉग्स में या जो स्निफिंग एनिमल्स हैं डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि तभी हम डॉग्स को यूज करते हैं एज स्निफर्स. वो डिटेक्ट कर लेते हैं, स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दे हैव डेवलप्ड olfactory lobes, olfactory glands. And the common opening for mouth, this is the mouth has a cavity. The common opening for mouth and the nose is pharynx. और ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या पानी पीते हो तो एकदम बात करने लगे तो एकदम नाक से पानी आता है, या आपके कॉमन ओपनिंग है, दैट इज द फेरिंग्स. Okay, and Ma'am, we have to draw this. Vijay, I've already shared the picture in the last class in the group only. Angelina, you Yes, have joined with two names, is it? You have joined from two devices, Angelina? No, ma'am. No, ma'am. Okay, you joined from one name only? Okay, Yes, just ma'am. one device? Okay. Can you just rename yourself as Angelina 1? Okay. Yes, ma'am. Okay. Because someone is trying to, earlier also someone was trying. Okay. Okay, so pharynx is the common opening for nose and mouth. तो फिर उसके बाद next part is I told you in the front we have trachea. Trachea is your windpipe. The trachea is another name for windpipe. It has tracheal rings. और इसके पहले Angelina, try to join with this name only for few days, okay? Angelina 1. Okay? Yes, ma'am. I'll do that. हाँ हाँ. There are some unwanted elements who try to mimic the names, है ना? So trachea is the windpipe. Windpipe के बाद पीछे आएगा food pipe. I told you there is common wall between windpipe and food pipe. Anubhav, we are doing the same topic that we started with. And it has tracheal rings. Rings, they are made up of cartilage. On the upper part we have the larynx. Larynx आपको बताया था, it is the voice box. It is prominent. Adam's apple. Yes, it is Adam's apple. It is prominent in case of boys. And जो Adam's apple आपको sorry larynx आपको बताया था in case of birds. Birds में आवाज सबसे सुरीली होती है because they have this syrinx. SYRINX, syrinx. The voice box in case of birds is known as syrinx. Next is it leads to bronchi. This is your food pipe. Food pipe तो पीछे चली जाएगी. और जो ये आपकी wind pipe है, it leads to a structure which is known as bronchi. Bronchi leads into bronchioles, and bronchioles leads into alveoli. Alveoli. Yes, alveoli is a sac-like structure. I'll tell you why it is a
like structure. But then it opens into the lungs, and lungs have a special membrane which is known as pleural membrane. Pleural membrane. Yes, pleural membrane. I hope it is clear now. And Tanvi, you need to make this diagram in your notebook. I have already shared it in the group. I'll try to send it again. Okay. This diagram is important, and Okay, ma'am. okay, you must have seen that there is some cavity. यहाँ पे हमारे पास एक notch है. Left side में heart is located. Heart is present in this notch. Okay, this is called as cardiac notch. Cardiac notch अगर आप देखना चाहते हो, I've already made this. So तो lungs जो यहाँ वाले lungs हैं on the left side, actually it is your left, right, लेकिन I'll tell you why it is known as the left side, because when we take out our organs, then अगर आप अभी अभी अपने ऑर्गन, सपोज आई वांट टू टेक आउट माय हार्ट, सो हार्ट को जब आप बाहर निकालते हो तो यू विल सी व्हाट यू विल सी इज द बैक साइड ऑफ योर हार्ट. आप इमेजिन करो मीनाक्षी के आपने दिल निकाला है, और दिल निकाल के अगर आपने उसे व्यू किया है, यू आर वाचिंग इट्स बैक साइड. तो आपने उसका फ्रंट देखना है तो आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा. उल्टा किया आपने तो उसका जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, जो राइट था वो लेफ्ट हो गया. इज इट? यस मीनाक्षी? Yes, ma'am. हाँ, तो इसके बाद यहाँ पे कार्डियक नॉच है. कार्डियक नॉच इज अ रीजन वेयर हार्ट इज लोकेटेड. तो अब आप लोग सब याद रखना कि जो हमारा हार्ट है पलक, वो हार्ट हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं बिल्कुल क्लाविकल जो शोल्डर बोन है वहां बोल देते हैं ये इट इज आवर हार्ट. तो इट इज नॉट वेयर हार्ट इज लोकेटेड, इट इज स्लाइटली लोकेटेड. इफ यू टच योर रिब्स, लोअर रिब्स को आप टच करोगे, यू जस्ट फील योर रिब्स, आप उनको प्रेस करो, यू विल फील देम. तो रिब्स में रिब कैविटी है, रिब के कैबेज है, रिब केज है, नॉट कैबेज, रिब केज है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. रिब केज का मेन फंक्शन होता है आपके ये प्लूरल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये बलून लाइक है. एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब गुब्बारे की तरह है. अगर अगर किसी ने गलती से आपको पंच किया तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेचेबल है, हवा भरी हुई होगी तो फट जाएंगे. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन एज वेल एज हार्ट, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिब केज है. रिब केज, तो रिब केज हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स. तो आई थिंक डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन. जस्ट राइट डाउन द हेडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम and try to be quick because I have to start with another topic also. So human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टम की बात हो रही है तो इसमें सारा कुछ आएगा. लेट अस स्टार्ट विद नेजल कैविटी. नेजल कैविटी, कैविटी जहां पे भी मतलब आएगा तो इसका मतलब है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को हम बोलते हैं कैविटी. जैसे मुंह को अगर आपने बंद किया, हमने ये चैप्टर नहीं किया डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ, लेकिन अगर आप अपना मुंह बंद करो और अपनी टंग को रोल करो मुंह बंद में, देन यू विल सी एम्प्टी स्पेस. दिस इज योर बक्कल कैविटी. खाली जगह जो है आपके मुंह में, दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. ऐसी नोज में काफी खाली जगह है, दैट इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी. तो नेजल कैविटी में लिखो. We have just now started with human respiratory system. First topic is nasal cavity. First topic is nasal cavity. मुझे किसके नेटवर्क इशू है आज? मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम किसको आ रही है आज? किसी ने अभी अभी ज्वाइन इन किया दोबारा? ओके, नेजल कैविटी में लिखो. इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर. It is a hollow structure with two nasal chambers. मैंने अभी बताया नाक में चैम्बर है. It is a hollow structure with two nasal chambers. Okay, got it, Mayank. Mayank, should I repeat? It is a hollow structure with two nasal chambers. और नाक में आप लोगों को पता है इट हैज म्यूकस सिक्रीशन. एक बात और, अब ध्यान से सुनते रहना क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी कि हमारे नोज में म्यूकस सिक्रीशन होती है,
क्योंकि म्यूकस में इंट्रैप हो जाते हैं इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज और जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं। वो जो म्यूकस है, नाक से जो स्पूटम निकलता है उसकी बात हो रही है, मुंह से सलाइवा निकलता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। क्योंकि हम आप लोग साइंस स्टूडेंट हो तो आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट लिसन टू मी, क्योंकि +2 में आप काफी कुछ डिटेल में सुनोगे। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में म्यूकस सिक्रीशन होती है अगेन टू ट्रैप दी जर्म्स और दी इंसेक्ट्स। बच्चे हमारी बॉडी में डायरेक्ट कंटैक्ट है, डायरेक्ट ओपनिंग है, डायरेक्ट ओपनिंग आपके कान से है। कान में कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा जा सकता है, कई लोगों के चला भी जाता है, बट वी हैव दिस वैक्स ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड इन द ईयर, जिसकी बदबू से जो आपके ईयर में कोई इंसेक्ट या कोई अनवांटेड पार्टिकल नहीं जाता। अच्छा, who has joined in just now? बच्चे किसी ने अभी ज्वाइन इन किया? यस, स्पीक आउट। ओके ओके ओके, रिया गॉट इट बेटे। Laksh, we are doing the same thing. Human respiratory system. So I was just telling the students that we have the direct openings, जिसमें environment से direct opening है। सबसे पहले आता है ears. ईयर में डायरेक्ट ओपनिंग है। अगर आपके ईयर में कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट चला जाता है, वो पहले तो वो इंसेक्ट रिपेलेंट है, बदबू आती है, उसको सिरोमिनस ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज वैक्स ग्लैंड, वैक्स में इंट्रैप हो जाता है, बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट ओपनिंग। तो भगवान ने उस ओपनिंग को बंद किया हुआ है, इट हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। नोज, डायरेक्ट ओपनिंग टू आवर बॉडी। नोज की ओपनिंग, ओके, नोज की जो ओपनिंग है, नेजल हेयर होते हैं उसके अंदर, नेजल हेयर में ओके। सादिया बेटे, वेलकम टू द क्लास। सादिया, अच्छा बच्चे, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अब नेक्स्ट आ रही थी नोज में। नोज में आपके पास है नेजल हेयर, म्यूकस। म्यूकस का मेन फंक्शन होता है टू इंट्रैप, वो जो मस्कीटोज हैं, जर्म्स हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। ऐसी म्यूकस सिक्रीशन होती है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में भी, विजाइना में भी। क्यों? क्योंकि ट्रैप कर सकते हैं वो जर्म्स को। दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट ओपनिंग। एनल रीजन में दैट इज ऑल्सो अगेन अ डायरेक्ट ओपनिंग टू कोलोन। तो आपका कॉलन है, उसकी डायरेक्ट ओपनिंग है कॉलन में, तो उसकी ओपनिंग के लिए भी एनल, आप लोगों को पता है एनल हेयर है। एनल में स्मेल आती है, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं बिकॉज ऑफ शिट, बिकॉज ऑफ फीकल मैटर। तो इसी तरह नोज में, नेजल कैविटी में, नाक में हमारे बाल हैं और म्यूकस सिक्रीशन है। और दूसरा मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था, इफ यू ट्राई टू पुट अ फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नोज, अगर आप नाक के आगे अपनी उंगली रखो, इंडेक्स फिंगर, तो आप देखोगे अंदर जब सांस ले रहे हो और बाहर जब छोड़ रहे हो सांस, देयर इज अ डिफरेंस कि जो अंदर जाने वाली हवा है बहुत लाइट होगी, बाहर आएगी वो एक तो गर्म है और हैवी है। और लास्ट टाइम रिया आपने भी नहीं किया था, जस्ट ट्राई टू डू दिस रिया एंड साध्या, वेरी ट्राई टू डू दिस, कि अपनी इंडेक्स फिंगर, अपनी फर्स्ट फिंगर है उसको नोज के नीचे रखो, इनहेल करो, एक्सेल करो। यू विल सी द डिफरेंस। जो एक्सेल की है वो थोड़ी सी हैवी होगी और गर्म होगी। यस, तो उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा, बिकॉज वी हैव फ्यू ग्लैंड्स जो नेजल चैम्बर में, जो उसको गर्म कर देते हैं हवा को, इन ऑर्डर टू किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दे गेट किल्ड एट हायर टेम्परेचर। तो अब म्यूकस सिक्रीशन हो गई और हेयर हो गए। तो नेजल कैविटी जो आपने लिखा है उसमें लिखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड it is composed of connective tissue and mucus, mucu. Ma'am, please repeat. Okay, बच्चे
आपने पढ़ा है नेजल कैविटी, यू ऑल आर डूइंग नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में आपने लिखा है, नेजल कैविटी में it is a hollow structure with two nasal chambers. It is a hollow structure with two nasal chamber. It is composed of cartilage, connective tissue. Just touch the tip of your nose. अपनी nose की tip को पकड़ो and you will see it is movable. टिप ऑफ नोज इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जिससे आपका कान बना है, कान को आप मूव कर सकते हो, नोज की टिप को मूव कर सकते हो। नोज जहां पे आईज के पास है वहां आपको बोन्स दिखेंगी, नेजल बोन। हम एक एक हड्डी का नाम याद करेंगे। दिस इज योर नेजल बोन। ये नेजल बोन, अगर आप बॉक्सिंग करते हो, अगर आप बॉक्सर हो तो आपको ये नेजल बोन हटवानी पड़ती है, तभी उनके फ्लैट नोज होते हैं। रीजन, ये नेजल बोन पे चोट लगती है तो बहुत दर्द होगी एंड ब्लीडिंग भी बहुत आती है, तो इसीलिए दे रिमूव दिस नेजल बोन। ओके, सो राइट डाउन। तो मैंने अभी आपको लिखवाया, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकस। म्यूकस सिक्रीटिंग, MUCOUS, म्यूकस सिक्रीटिंग स्क्वैमस एपिथेलियम। जहां पे भी इस चीज को अब आपने याद करना है, सबको बार बार आई रिपीट दिस, देन यू विल गेट टू नो। बार बार एंड आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग कि जहां पे भी म्यूकस होगी, म्यूकस अब क्या था, जो स्पूटम होता है नाक से, जब आप ब्लो आउट करते हो तो स्पूटम होता है, दैट इज म्यूकस। सलाइवा कई बार म्यूकस होता है, और ये म्यूकस सिक्रीशन जहां भी होगी, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये म्यूकस सिक्रीशन होगी, वहां की एपिथेलियम होगी स्क्वैमस एपिथेलियम। सिर्फ आपने नाम याद करना है, हम पढ़ेंगे क्या है ये। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकस सिक्रीटिंग स्क्वैमस एपिथेलियम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम मेरे थ्रोट में बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होती है। हाँ, कईयों को है बच्चे ये प्रॉब्लम होती है, म्यूकस सिक्रीशन की बहुत ज्यादा होती है। कईयों मेरा को एक नाक तो ब्लॉक भी रहता है, मेरा एक हाँ, नोज आई थिंक पता नहीं 2 इयर्स से ब्लॉक है। मुझे आपने साइनस का दिखवाया है, यू मस्ट बी हैविंग, क्योंकि नेजल बोन हमारी एक बार कई बार हमारी नेजल बोन है ना एक साइड की, वो बढ़ जाती है और वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से चोक रहता है, गला चोक रहता है तो वो म्यूकस सिक्रीट करता रहता है, तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है। आपको भी जब एसी में बैठते हो तो होता है ऐसा? यस मैम, रात को पूरा ब्लॉक हो जाता है। हाँ, बस वो ब्लॉकिंग की वही इशू है बच्चे, यू मस्ट सी अ डॉक्टर फॉर दिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है ये, सीवियर प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज इट कॉजेज इरिटेशन, नोज ब्लॉकेज, आप सो नहीं पाओगे, और इचिंग होती है टीथ में। इज इट? दांतों में इचिंग होती है? नो? ओके। वैसे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन इज स्टीमिंग, स्टीम लोगे तो काफ़ी इजी रहेगा आपको। ओके, फिर इसके बाद, ओके, फिर इसके बाद लिखो, it has a pair of openings called nostrils. It has a, yes, इससे पहले आपने स्क्वैमस एपिथेलियम में लिखा है ना? yes. It has pair of openings called as nostrils. Pair of openings called as nostrils. अब जो कोविड-19 वायरस है वो हमारे नाक में के थ्रू ही जा रहा है, नेजल और माउथ ये दोनों ओपनिंग्स के थ्रू जा रहा है, तो उसमें जो टेस्ट होता है वो नोज से ही टेस्ट कर रहे हैं, नेजल स्वाब ले रहे हैं, तो नॉस्ट्रल्स से वो पहुंच रहा है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है। तो नेजल कैविटी पता चल गया आपको, इट लीड्स टू ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। नेक्स्ट आपको नोज के बाद आपको एक टॉपिक बताया था फेरिंग्स। फेरिंग्स जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन इन किया है, साध्या आप ध्यान से सुनोगे, पल्लवी आपको क्लियर है बेटे? फेरिंग्स रीजन वो है विच इज कॉमन ओपनिंग फॉर नोज एंड माउथ, और ऐसा एक्सपीरियंस सभी के साथ हुआ होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, एकदम बात करने लगे या एकदम फिस ज्यादा हो गई तो आपने देखा होगा नाक से भी आना शुरू हो जाता है वो फ्लूइड,
बिकॉज दे हैव कॉमन ओपनिंग. बचपन में बच्चों के साथ तो बहुत कॉमन होता है. बच्चे एकदम बात करते करते कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो फेरिंग्स है. फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग. तो इसमें लिखो इट इज अ शॉर्ट ट्यूब. इट इज अ शॉर्ट ट्यूब which serves the passage for food and air. Which serves the passage for. मैम ये फेरिंग्स में लिख रहा है ना? Yes, pharynx में. Yes. It is a short tube which serves the passage for both food and air. It is a short tube which serves the passage for both food and air. It leads to larynx. फेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आता है? लेरिंग्स. लेरिंग्स मैंने आप लोगों को बताया, ये वॉइस बॉक्स है, प्रोमिनेंट होता है लड़कों में. अगर आप बॉयज में देखो, ऑलमोस्ट सभी बॉयज में होगा. नेक रीजन अगर आप देखोगे तो एक ऐसे प्रोमिनेंट सा रीजन होता है. नेक रीजन की बात हो रही है. दिस प्रोमिनेंट रीजन, ये एडम्स एप्पल भी बोलते हैं इसको. इट इज सिचुएटेड, लिखो लेरिंग्स, LARYNX. इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. लेरिंग्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई टेल यू व्हाट इज इट. बच्चे ये देखो, बॉयज में जो लेरिंग्स में कहा जाता है, ये कार्टिलेज टिश्यू है. लेरिंग्स में हमारे यहाँ पे ना स्ट्रिंग्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन केस ऑफ बॉयज दे आर लूजली अटैच्ड. इन केस ऑफ गर्ल्स दे आर वेरी टाइटली अटैच्ड. अब जैसे अगर आपके पास गिटार है, गिटार में अगर आप अपने थ्रेड्स को, जो स्ट्रिंग्स हैं, उनको लूज कर दोगे तो आपने आवाज देखी कैसे आती है बॉयज की. मतलब वो लूज होंगी तो ढुम आवाज आएगी. इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज टाइटली अटैच, तो फीमेल्स की आवाज आती है टिंग. तो इमेजिन कर सकते हो आप. द सेम ये कार्टिलेज की वजह से जो फीमेल्स की वॉइस है, दैट इज श्रिल, बहुत तीखी आवाज होती है. और मेल्स में होर्स वॉइस होती है, बहुत भारी आवाज होती है. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज इन लेरिंग्स. तो लेरिंग्स के लिए लिखो इट इज the anterior part. It is situated at anterior part. Anterior मतलब ऊपर. Anterior part of trachea. ट्रेकिया सबको पता है विंड पाइप का दूसरा नाम है. तो ट्रेकिया के सबसे पहले पार्ट क्या आएगा? लेरिंग्स. इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया. It leads to glottis. It leads to trachea. It leads to trachea with a flap-like protection. It leads to trachea with a flap. Flap मैंने आपको बताया था, जैसे आपके बैग्स में फ्लैप होता है ऊपर. With a flap-like protection called as no. With a flap-like structure, epiglottis. The flap-like structure called epiglottis. 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 Larynx is composed of 9 cartilages. मैंने अभी बताया cartilages, ये थ्रेड बनाए थे अभी, आपने स्क्रीन पे देखा था सबने. I've made the 9 cartilages. Larynx is composed of 9 cartilages which are lined with mucous membrane. Which are lined with mucous membrane.
The larynx contains the larynx contains pairs of fold-like structure called as contains a pair of fold-like structure called as ventricular folds. वेंट्रिक्यूलर फोल्ड्स ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं. कई बार हम बात करते हैं आवाज नहीं आती या बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, तो जैसे आपने सुना होगा डेफ एंड डम, तो डम पीपल जो हैं दे कैन नॉट स्पीक, तो रीजन इज देयर वेंट्रिकुलर कॉर्ड्स दे आर नॉट फंक्शनिंग. तो वेंट्रिकुलर कॉर्ड्स को बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स. और जब इन कॉर्ड्स में से, कॉर्ड समझ रहे हो, मैंने अभी बताई थी थ्रेड्स, स्ट्रिंग्स, जैसे गिटार में होते हैं स्ट्रिंग्स, तो अगर ये थ्रेड में से हवा जाती है तो आवाज आती है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल, ADAM, एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल आप लोगों को बताया था क्यों बोलते हैं इसको. ये एडम जो है, एडम और ईव बाइबल के अकॉर्डिंग, अच्छा एवोल्यूशन में है ये, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर ये चैप्टर. एवोल्यूशन में कहते हैं बाइबल में बोला था कि हेवन से दो लोगों को नीचे पनिश किया था और नीचे अर्थ पे फेंक दिया था. वो थे एडम और ईव. एडम ने फिर वो एप्पल खाया तो वो एप्पल से हम सारे बच्चे प्रोड्यूस हुए. तो वो एप्पल खाने से उसके हम सारे बच्चे हम उनके, तो उन्होंने कहा लाइफ ओरिजिनेट ऐसे हुई. वैसे ही आप नॉर्मल इंडियन माइथोलॉजी में अगर पढ़ोगे तो उसमें ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ने गॉड ने क्रिएट कर दिया. एक दिन में लाइफ आई, दूसरे दिन में जो आपके प्लांट्स आए. दिस इज हाउ दे क्रिएटेड द लाइफ, बट इट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू साइंस. तो लेरिंग्स में वो नाम बोल दिया कि वो जो एप्पल है वो यहीं पे गले में अड़ गया उसके. तो मेल है ना, मेल के पास वो एप्पल है, that is called as Adam's apple or voice box. but ऐसा कुछ भी नहीं है. it is because of the arrangement. I told you cartilage जो है वो थोड़े ज्यादा लूज हैं boys के केस में. और नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रेकिया. ट्रेकिया मैंने आप लोगों को, यस Can I ask you, यस, ma'am, ventricular force is the Cord. word now. कॉर्ड, CORD, कॉर्ड्स. ठीक है, कॉर्ड मीन्स थ्रेड, Ma'am, स्ट्रिंग. what does it exactly mean, ventricular cord? बच्चे वेंट्रिकुलर कॉर्ड इज द नेम गिवन टू दोज कार्टिलेजेस. मैंने अभी बताया था आपको जब आई हैव मेड दिस डायग्राम कि लेरिंग्स में ऐसा स्ट्रक्चर है. तो लेरिंग्स में ना यहाँ बीच में स्ट्रिंग्स होती हैं. दी स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड एज द कॉर्ड्स. कॉर्ड जैसे स्ट्रिंग, धागे को बोलते हैं ना, स्ट्रिंग को बोलते हैं कॉर्ड्स. तो ये ट्रू कॉर्ड्स हैं. ये इन केस ऑफ मेल दे आर लूजली पैक्ड, दे आर लूजली अरेंज्ड, वेयर इन केस ऑफ फीमेल दे आर वेरी टाइटली अरेंज्ड. तो जब इनमें से हवा जाती है तो प्रोड्यूस करते हैं साउंड. ओके Yes, ma'am. And ma'am, जो Adam's apple है, it is a part of larynx. Yeah, it is larynx only. It is larynx only. So it is prominent in case of boys. That is why it is called as Adam's apple. And in case of birds, I told you कि birds की आवाज बहुत सुरीली होती है. जैसे कोयल की आप लोगों ने बताया था उस दिन आंसर, या नाइटिंगेल की आवाज बहुत अच्छी होती है. It is because their voice box is a special thing, or that is known as syrinx, SYRINX. तो नेक्स्ट आप लिख रहे हो ट्रेकिया. ट्रेकिया मैंने आप लोगों को बताया था एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल ट्यूब है, जिसमें जो जस्ट लुक एट द डायग्राम फर्स्ट, ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स है, रिंग के ऊपर रिंग है, कार्टिलेज की बनी हुई है। अब वही कार्टिलेज है जो मैंने आपको बताया था आपकी टिप ऑफ नोज फॉर्म कर रहा है। अगर आप नाक की टिप को अगर आप हिलाओगे तो इट इज मूवेबल, लेकिन एंड ऑफ नोज वहां पे आपको हड्डी दिखेगी, दैट इज योर नेजल बोन। ईयर्स को आप मूव कर सकते हो, यस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज है, बोन नहीं है। अगर बोन होती तो ये स्टिफ होता। वैसे ही कार्टिलेज हमारे ट्रेकिया में बना हुआ है, विंड पाइप में है, ट्रेकियल रिंग्स। और जब हम आगे से दिख रहे हैं तो हमें ऐसे दिख रही हैं, रिंग पे रिंग है, लेकिन जब हम पीछे से देखेंगे तो रिंग इज हाफ। और मैंने बताया था इसका रीजन कि पीछे से इट इज इट हैज अ कॉमन वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप है, विंड पाइप है, तो ये पूरी रिंग्स नहीं है, दे आर सी शेप्ड रिंग्स। पीछे से इट इज अटैच टू दिस फूड पाइप, ईसोफेगस। जैसे दो घर बनाते हैं तो एक दीवार बना लेता है, दूसरा फिर उसकी वॉल को यूज करते हैं, कॉमन वॉल। तो सेम, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सरफेस एरिया दे हैव दिस कॉमन वॉल। तो इसीलिए रिंग्स ना आधी रह गई, आगे से तो दिखेंगे पूरी रिंग्स, लेकिन पीछे ये इनकम्प्लीटली सी शेप्ड रिंग्स है। आई होप इट इज क्लियर। और अगर आप लेंथ की बात करते हो तो आपके पास फुट रूल, आपका स्केल है, स्केल 12 सेंटीमीटर का होता है, उतनी लंबी आपकी विंड पाइप है। तो लिखो इट इज फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी आपने हिला के देखा अपना ईयर, अपना नोज, टिप ऑफ नोज, इट इज फ्लेक्सिबल थिन वॉल ट्यूब। It is flexible thin wall tube of 11 centimeter in length. It is supported by a series of it is supported by a series of 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. C-shaped cartilaginous rings. To prevent its collapsing, ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे। अगर सिर्फ पाइप हो तो वो गिर जाएगी, तो पाइप की शेप मेंटेन करने के लिए हमारे पास है कार्टिलेजिनस रिंग्स, टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्सिंग। Ma'am, can you repeat? Yes, बच्चे, it is supported by a series of 16 to 20 C-shaped rings, cartilaginous rings, to prevent its collapsing. Length और क्या इसको लिख लिया बेटे, to prevent its collapsing. length क्या थी length? 11 centimeter, 11 centimeter. Okay. Okay. Write down the next part, that is bronchi. ट्रेकिया के बाद हमने क्या बनाया था? ब्रोंकाई। Ma'am, bronchus क्या है? एक ही बात है, ब्रोंकाई ब्रोंकस प्लूरल को बोल, ए सिंगुलर ब्रोंकाई ब्रोंकस दोनों को मिला के। ओके, the trachea divides into two bronchi
bronchi में आप लिखो, divides into 2 bronchi which redivides into small branches, called as bronchioles. Ma'am, can you repeat? Yes. बच्चे bronchi में आप लिख रहे हो, the trachea divides into 2 bronchi which redivides into bronchioles. I've written the spelling of bronchioles. Done. These bronchioles divides into further branches which opens into alveoli. Further branches which opens into alveoli. Which opens into alveoli. अब alveoli के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, it is a special part alveoli. alveoli को हमने special क्यों बोला? लिखो alveoli के बारे में. Each alveoli has a sac-like structure. sac हम खाली लिफाफे को, खाली बोरी को ऐसे बोलते हैं. तो each alveoli is a sac-like structure. It is an empty pouch. It is a sac-like structure which is richly supplied with blood. They increase surface area for absorption. Yes, yes. Very good. Which is richly supplied with blood. There are about 300 millions of alveoli in 2 lungs. How many alveoli are there? 300 million. 300 millions of alveoli in 2 lungs. I'm just giving you an idea. हमने पढ़ा था मेजर पार्ट ट्रेकिया. ट्रेकिया में आधी रिंग्स थी, सी शेप्ड रिंग्स थी. ट्रेकिया लीड्स इनटू ब्रोंकाई. Bronchi leads into bronchioles, and bronchioles leads into a very small part called as alveoli. तो देखने में ये ऐसे लगते हैं, but it has rich blood supply. देखोगे आप तो ऐसे sac like structure है, but अगर आप इसको डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे तो इट हैज रिच ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई क्यों है? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो. सैक शेप्ड क्यों है?
क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने बताया था टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिखो इसका, इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, it has large surface area for exchange of gases. Now coming to a very important part, that is lungs. Lungs में सबको बताया था मैंने, it has a special wall called as pleural membrane. लिखो पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स के बारे में लिखो, दो होते हैं हमारे पास लंग्स. पेयर ऑफ लंग्स is situated in thoracic cavity. Pair of lungs is situated in thoracic cavity. अब thoracic cavity क्या है? Thoracic cavity is your rib cage. अगर हम रीढ़ की हड्डी को देखें, मैंने आपको बताया था आपको बोन्स का नाम याद करना होगा. आपके नेक रीजन में जो बैक में आती हैं रीढ़ की हड्डी का पार्ट, दैट इज योर सर्विक्स, सर्वाइकल. आप लोगों ने बहुतों ने सुना होगा सर्वाइकल पेन है, बिकॉज वो रीढ़ की हड्डी जो है, जो बैकबोन है, उसमें जो सर्विक्स रीजन है वो पेन कर रहा है. वैसे ही आता है सर्विक्स के बाद रीजन आता है थोरैसिक. रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है तो बैकबोन के पीसेस को नाम दिया गया है. टॉप पे जो 7 है हमारी नेक रीजन में वो सर्वाइकल है, सर्विक्स, फिर थोरेक्स आता है, फिर उसके बाद लंबर आता है. लंबर इज योर लोअर हिप. फिर जो हमारे हिप रीजन में बिल्कुल आता है जो टेल बोन है, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं या बिल्कुल स्टेबल खड़े हो जाते हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस टेल बोन. टेल बोन इज नॉट विजिबल बट इट इज इंटरनली, इट इज पॉइंटेड, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हैं. तो थोरेक्स रीजन आपको सिर्फ आपकी रिब केज है. आई आस्क्ड यू टू टच योर रिब्स ऑल्सो. आप लोग अगर जोर से दबाओगे अपनी साइड पे वेस्ट को और अपनी रिब्स को टच करोगे, यू विल फील रिब केज है. रिब केज जितना भी बना हुआ है दैट इज इन योर थोरेसिक रीजन. तो लंग्स सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, THORACIC, thoracic cavity, enclosed by pleural membrane. Enclosed by pleural membrane. प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर होती है ये? बच्चे नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन है. जो लंग्स है ना, मैंने आपको बताया तो गुब्बारे की तरह फूलते हैं और जब हवा निकलती है तो वो कोलैप्स नहीं होते, बंद होके चिपक नहीं जाते. गॉट इट? दे रिमेन डिस्टेंसिबल, मतलब अपनी शेप को मेंटेन, स्ट्रेचेबल जैसे होता है वो. दे हैव अ स्पेशल मेम्ब्रेन. वो किस चीज का बना हुआ है? प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके. और शायद मैंने आप लोगों को बताया था जब हम मदर बॉडी में थे तो एक फ्लूइड में रहते हैं. मदर बॉडी में हम पानी में रहते हैं. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड. कई बच्चे तो उस पानी को पीते भी हैं, इतनी भूख लगती है. लेकिन आपको पता है पानी में सांस लोगे तो लंग्स में पानी भर जाएगा, इसलिए हमारे लंग्स जब हम मदर बॉडी में कोलैप्स्ड होते हैं, मदर बॉडी से बाहर आने के बाद डॉक्टर्स या नर्सेस सबको उल्टा करते हैं और पैट करते हैं हमारी पीठ पे. और आपने देखा होगा मूवीज में जब बच्चा रोता है तो कहते हैं कंग्रेचुलेशंस. क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है अगर हेल्दी होगा तो वो रोएगा, और अगर आवाज तभी आएगी जब उसके लंग्स में हवा होगी. तो इसीलिए जो डॉक्टर्स या नर्सेज हैं उल्टा करते हैं लंग्स में. लंग्स जो बिल्कुल चिपके हुए हैं, कोलैप्स्ड होते हैं, उसको हवा भरने के लिए पैट करते हैं जोर से. और बच्चे के फिर जब वो लंग्स में हवा आती है तो वो बच्चा रोएगा, तो इसलिए बिकॉज वो चोट लगी है, उसको किसी ने मारा है. बट इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसा ना हो कि बच्चे के लंग्स कोलैप्स्ड हो, ऐसे बच्चे को हम ब्लू बेबी बोलते हैं, कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा और वो ब्लू हो गया, तो ब्लू बेबी बोला जाता है उस केस में. तो अभी आप लोग, हम सब हेल्दी नॉर्मल बेबीज थे, तो बिकॉज प्लूरल मेम्ब्रेन जो है हमारी, उसमें हवा आ गई थी लंग्स में. Next लिखो, the outer layer of pleural membrane. Next part is the space between
two pleural membrane. The space between two pleural membrane is filled with the fluid the space between two pleural membrane is filled with the fluid which reduces friction. Can anyone tell me if the size of which lung is smaller, left or right? लेफ्ट. मैंने अभी आपको लोगों को से डिस्कस किया था कि लेफ्ट लंग को थोड़ा सा छोटा होना पड़ा क्योंकि इट हैज कार्डियक नॉच, इट हैज टू अकोमोडेट हार्ट. तो हार्ट हमारा नीचे है. बहुत सारे बच्चे अपना दिल जो है अपने कॉलर बोन पे बना देते हैं, फिर लंग्स कहाँ जाएंगे? तो लिखो इसमें द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग as it has cardiac notch. सेंटर में होता है यार. No, it is slightly to the left. You can see center is this बेटे. Center हमारे ये दोनों के बीच का part, but it is slightly tilted to the left. Okay? Okay मैम. हाँ, तो इसमें लिखो बेटे the left lung is smaller than the right and contains cardiac notch for keeping the space for heart. Ma'am, please repeat. The left lung is smaller than the right lung and contains cardiac notch for keeping the space for heart. ओके सो अब आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट वाज वेरी इजी. अब कहते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसा होना चाहिए सो दैट इट इज इजी टू रेस्पायर. कई ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बताया अर्थवॉर्म अभी बारिशें हो रही हैं तो बहुत आपको दिखेंगे गार्डन में, पार्क में, जहाँ भी मिट्टी होगी, बिकॉज दे फीड ऑन सॉइल ओनली, मिट्टी खाते हैं. उनके केस में कहा जाता है कि दे रिस्पायर थ्रू देयर स्किन, मॉइस्ट स्किन. तो ऐसा कैसे है कि उनकी स्किन से वो रिस्पायर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो रिस्पायर कर सकते हैं, पानी में से ऑक्सीजन उठा सकते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन. हम नहीं ले सकते ऑक्सीजन डिजोल्व. तो देयर इज अ डिफरेंस. तो ये आपने लिखना है. क्वेश्चन आप लिखोगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स of a surface. What are the requirements of a surface to be efficient for gaseous exchange? Ma'am, please repeat it. Okay. What are the requirements of a surface? What are the requirements of a surface to be efficient for gaseous exchange? To be efficient for gaseous exchange. Can anyone tell me? Thin होनी चाहिए skin. Richly supplied with blood vessels. They is richly good. supplied with blood Wow, vessels. wow. Beautiful, beautiful. So everybody has an answer. So जो सुन रहा है ध्यान से, सबको पता है इस बारे में कि जो हमने प्रॉपर्टीज इसकी लिख दी वही प्रॉपर्टीज है. तो राइट डाउन. फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो. इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया. It should have large surface area, comma thin, moist. It should have large surface area, thin, moist.
large surface area, thin, moist. Next point, it should be highly, yeah, it should be richly supplied with blood. It should be richly supplied with blood. It should be richly supplied with blood. Next, लिखो, it should be permeable to respiratory gases. It should be permeable to respiratory gases. Gases को allow भी करें. It should be permeable to respiratory gases. अच्छा, अब एक टॉपिक है जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में लिखोगे. अब अगर हम बात करें हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, कहते हैं कुछ एयर हमारी बॉडी में, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप सांस इनहेल करो तो इनहेल टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी. आप इतनी जोर से इनहेल करो कि आपके लंग्स जो है फूल जाएं पूरी तरह से. दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फिर मैंने बोला इतनी जोर से एक्सहेल करो कि आपके लंग्स बिल्कुल जुड़ जाएं, बिल्कुल जोर से. तो एक आपने इंस्पायर किया, एक आपने एक्सपायर किया, और फिर आपका जो नॉर्मल हम ब्रीथ करते हैं पता भी नहीं चलता. दैट इज योर नॉर्मल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. तो इसके बेसिस पे कोई एक फ्लो चार्ट है जिसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज. लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज. तो लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज में दो वॉल्यूम्स आते हैं. एक हम इंस्पायर करेंगे, एक एक्सपायर. इंस्पायर मतलब इनहेल, इंस्पिरेशन. सिर्फ सुनना है आपने. आई विल मेक यू राइट डाउन इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी अबाउट इट. एक आता है एक्सपिरेशन. आई टोल्ड यू कि सिर्फ समझने वाला काम करो, बार बार रिपीट होगा, आपको बहुत अच्छे से लर्न होना शुरू हो जाएगा और रिवीजन इसकी 2-3 बार होगी. दैट इज माई हेडेक. बायो इज माई हेडेक. जस्ट लेट मी नो विच चैप्टर इज कमिंग इन योर सिलेबस. दैट्स इट. तो इंस्पिरेशन में कहते हैं कि जो नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर किया आपने, दैट इज योर, अब ये जोर से एक्सपायर किया, नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर करना, उसको बोल दिया टीवी. दैट इज टाइडल वॉल्यूम. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी इंस्पायर और एक्सपायर नॉर्मली. ओके, जो हम नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम. और अगर हम ग्राफ की फॉर्म में इसको बनाएं तो दिस इज योर ग्राफ, टाइडल वॉल्यूम. दैट्स इट. बिल्कुल आराम से, पता भी नहीं चल रहा. लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आप मोर देन योर कैपेसिटी जस्ट इंस्पायर मोर देन योर कैपेसिटी, तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ा, ग्राफ को ऊपर जाना पड़ा. एंड दिस इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है विच इज मोर देन टाइडल इंस्पिरेशन, विच इज मोर देन टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आपको इनहेल करना पड़ा, दैट इज व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और अब मैंने बोला आपको ज्यादा जोर से एक्सहेल करना है, हवा को बाहर निकालना है बॉडी से, तो दिस इज योर ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल था नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा किया तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इन तीनों को मिला के, आई एम रिपीटिंग, मैंने तीनों को ऐड किया
तीनों क्या क्या थे? IRV, TV, ERV, तीनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो ये आपका बनेगा VC. VC इज योर वाइटल कैपेसिटी. पूछा जाता है व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स, तो आप सीधा जवाब दोगे इट इज द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. लेकिन फिर भी हमारा लंग जो है इतनी जोर से एक्सेल करने के बाद भी हमारा लंग चिपकते नहीं है, कोलैप्स नहीं होते, बिकॉज देयर Ma'am, इज presence सम of C-shaped structure. C-shaped structure that is in the trachea. Residual volume. Presence of diaphragm. No, because there is some volume which is always left. Yes, someone gave the answer. It is the residual volume. ट्रेकिया में सिर्फ कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, लंग्स में तो सिर्फ ब्लैडर है, गुब्बारा है, और वो कोलैप्स कर सकता है, चिपक सकते हैं, बट दे नेवर कोलैप्स. कैन यू जस्ट इमेजिन, बलून बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज some amount of volume of air always remains in it, and that volume is called as the residual volume, बची कुची residual volume. Now this VC, मैंने इसका क्या नाम बोला था, VC वाइटल कैपेसिटी प्लस RV समझ रहे हो, रेजिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के अगर मैं पूछूं आपसे, दिस इज योर TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी इज योर VC वाइटल कैपेसिटी, बची हुई जो थी रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको मिलाया तो क्या बन गया, टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, VC प्लस RV. कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो चुका है, प्लीज रेज योर हैंड. साध्या बेटे, यू हैव ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन, टैप करोगे उस पे पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में रेज हैंड की ऑप्शन है. मैम मोर पे भी होता है. मोर पे भी है, ओके, मोर पे भी ऑप्शन है, ओके मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो. ओके, आई विल डू दैट. बच्चे देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास आप इनहेल करते हो और एक्सेल करते हो, इज इट? इनहेल इंस्पिरेशन, एक्सेल एक्सपिरेशन. तो जब हम नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मली, नॉर्मल आपने इनहेल किया एयर और एक्सेल किया, दैट इज योर नॉर्मल कैपेसिटी. लेकिन अगर मोर देन नॉर्मल मैंने आपको बोला इनहेल करने के लिए, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मोर देन योर नॉर्मल वैल्यू, देखो नॉर्मल वैल्यू से नीचे जा रहे हैं, एक्सेल करने के लिए बोला, दिस इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तीनों को मिलाया, IRV, TV एंड ERV, तो आपका क्या बन गया, VC वाइटल कैपेसिटी. लेकिन फिर भी हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते, बिकॉज वी हैव दिस RV रेजिडुअल वॉल्यूम. तो VC और RV, ये देखो VC और RV दोनों को मिला के बोल दिया TLC, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी. I'll repeat this topic once again in the next class, so don't worry. And I'll be taking a Sunday extra class, so उसमें हम plant kingdom जो है, plant kingdom, that is your third chapter. First chapter तो आ नहीं रहा है आप लोगों को, second chapter we have already done. Very good साध्या. बच्चे और मीनाक्षी, साध्या, पल्लवी, but I'll be repeating all the chapters once again in the Sundays class, so don't miss your Sundays class. In fact, every teacher is taking extra class on Sunday, और सारा हम टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं. यस, बाकी सबको क्लियर हो रहा है? यस रितिका? मैम VC और RV बताने के बाद. Yes मैम. ओके, वेरी गुड. बच्चे, VC इज योर वाइटल कैपेसिटी, IRV, TV और ERV तीनों को मिला के. और आपने क्या पूछा था, VC एंड RV. रेजिडुअल वॉल्यूम, जो बची हुई हमेशा रहती है वॉल्यूम, मतलब हमारे लंग्स कभी भी जो कोलैप्स नहीं होने देते. हाँ, बची हुई वॉल्यूम. यस, okay. Yes. And we'll study about this topic in the next class in detail, and I'll send the pictures in the group right away. जो ये chart जो मैंने बनाया है, इसकी picture. Sadhya, I'll add you. Meenakshi, you are there in the group already. Pallavi, you are also there in the group. Ritika, तो your old student. Pallavi, you are also there in the group. Pallavi, just raise your hand if you are there in the group. Pallavi, am I audible, bete?
Okay, I'll check. I'll check if you're there in the group. So I'll add you, Sadhya. बाकी सब already हैं. I'll share the pictures. और बाकी सब भी आप लोग बच्चे अपडेटेड रहो. वी आर सेंडिंग बुकलेट्स ऑल्सो, जो है आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स की बुकलेट हैं डिफरेंट स्कूल्स की. इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. बहुत सारे बच्चे आईसीएसई से आए हैं, कुछ बच्चे जिनको आप लोगों को +1 का नहीं आइडिया, बट इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दी क्वेश्चन एंड कई बार दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड, so it's better to prepare yourself right now, and if you find any kind of problem just let us know. Okay, so take care everyone. Bye bye for now. See you in the next class on Saturday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.